Okay, so now let's understand what exactly is the Apex programming. So first of all, Apex is a kind of cloud-based object-oriented language. Now, any one of you have, if you have done C++ programming or Java programming, so we generally call this language as to be object-oriented, right? Java programming is an object-oriented. Your C++ programming is also object-oriented. C is not. C is procedure-oriented. And there is a vast difference between procedure-oriented and object-oriented. So we will understand this, what exactly it means by the object-oriented concept of object-oriented. But before that, what we are dealing with a cloud-based language, a language that is fully cloud-based. That means if you wanted to execute a program, if you wanted to execute, like how we actually have done, how we have accessed our org, we go to the login.salesforce.com, we enter our credentials over there. And then we are on to this particular application. Which application? What we created this application, right? So this is how we access this application. Now, if I wanted to develop something, if I wanted to write a program, the way will be same. You need to launch a URL. What URL? Developer console. Okay. So you need to launch this. You go to one of the URL, and this is the place. This is the place where we exactly, we write down the programs and everything. How I get this anonymous window? This is something called as execute anonymous window. तो ये कैसे लाया मैं सब सिखाने वाला हूँ. अभी just I am putting you everything in front of your eyes so that you would understand कि हम actually करने क्या वाले हैं. बाकी मैं हर step सिखाने वाला हूँ. How I get to this, how I ये मैंने screen पे कैसे लाया, क्या इसको way है, क्या shortcut है, कैसे program type करना, कैसे इसको execute करना, फिर कैसे result देखना. Everything we are going to learn. Here वो आने वाले वक्त में है. अभी हम क्या देख रहे हैं कि how we are going to launch the programming environment. So did we require to install something onto the device? No. Again, no. Why? Because we are not dealing with any of the on-premise technology. Rather, what we are developing is something called as on-device. Oh, sorry, on cloud, right? On cloud. That is what the thing. So your development environment is also on cloud environment. And what you are going to code, this language, this is also a cloud-based programming language, a cloud-based object-oriented programming language. Okay. Now, what is object-oriented? We are going to have this discussion. There is a topic, ORM, object relationship and mapping. There exactly we are going to have a discussion regarding object-oriented concepts and everything. So this is what the Apex is all about. So Apex is actually a kind of programming language. First of all, it's a cloud-based programming language. It's object-oriented. It follows the principle of object-oriented. Whatever, if someone of you have learned what exactly is object-oriented, अगर आप में से किसी ने पढ़ा है, तो the principles what you have learned that time, मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन समय आएगा अभी उसका. तो अगर आपने किसी ने पढ़ रखा है कि what does it means by polymorphism, what does it means by abstraction of data, what does it means by inheritance, so everything what you have learned so far in the object oriented, the same principle applies over here. Apex is purely an object oriented language. तो कैसे है हम देखने वाले हैं, ठीक है. So by using Apex, what we can implement everything. First of all, we can implement every type of custom validation logic using the triggers. Triggers is the most important aspect of putting the validations. Validation rules हम जब हम यहाँ create करते थे, if in one line, if I wanted to ask, if I ask any one of you, give me just the answer, what exactly is the validation rule, या फिर what is the purpose of validation rule, तो you can tell me कि हाँ देखिए जहाँ कहीं पर भी we wanted to introduce certain conditions, rule conditions, that this should happen. If we are storing a data, if you are updating a record, if you are deleting a record, if you are transferring a record, or other, if you are wanted to perform some operation, and before performing that operation, we wanted to check some rule. To how to design that condition, we design that condition using validation rules. So this is what the concept. Now in the program, whenever we wanted to do this, so there is also one of the way, to every custom validation rule we could design with the Apex programming, with the help of triggers we are going to learn. Then every complicated business logic, whatever you want, that could also be done. So this is different, the different parts, whatever you wanted to be built onto your project, that could be done with the Apex programming. Apex is not a case sensitive language. We are going to see that also. Here, if you type in, if you type in capital, like this, तब भी आपको मतलब दिख रहा है कि इंटेलिजेंस आएगा.
ठीक है। तो और आप अगर ऐसा भी करते हो ना, देखो, तो दिस एक्चुअली मीन्स कि अपेक्स इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो अपेक्स में हम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल भी कर सकते हो। ठीक है, पहले तो देखो मैंने उसके बाद में ये ऐसा भी किया, फिर भी करता हूँ तो भी आता है इंटेलिजेंस। मीन्स क्या है कि अपेक्स इज प्योरली अ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप चाहे कैपिटल में टाइप करो, आप चाहे स्मॉल में टाइप करो, तो वो इट इज ट्रीटेड एज वन एंड सेम थिंग इन दी अपेक्स। लेकिन ये अपेक्स में है। जब आगे चल के आप लाइटनिंग पे जाओगे ना, तो लाइटनिंग इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और फिर जब आगे चल के जाते हो तो फिर एक बहुत बड़ा वास्ट डिफरेंस होता ही है कि हमको अपेक्स लिखने की आदत हो जाती है। और फिर मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि देखिए एटलीस्ट यू शुड एटलीस्ट गेट 3 to 4 months ऑफ नॉलेज ऑन दी अपेक्स, देन ओनली ट्राई टू स्विच ऑन टू ऑरा। बिकॉज आप पहले जाओगे ना तो वो इट्स बिकम टू अर्ली व्हेन यू आर नॉट बीइंग व्हेन यू आर नॉट कंसेप्चुअली रेडी विद अपेक्स, तो आपको वहां फिर दिक्कतें जाती है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप उस वक्त पाओगे, बिकॉज यू आर व्हेन यू आर वेरी यूज्ड टू व्हेन वी आर वेरी यूज्ड टू विद दिस लैंग्वेज, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट केस सेंसिटिव। लेकिन ना ऑरा है, ऑरा में तो ऐसा कि अगर इफ द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, इट शुड बी कैपिटल एनी हाउ, वरना फिर आपको एरर्स आते हैं, ऐसा होता है। तो एक ये चीज है अपेक्स की बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, कि अपेक्स इज नॉट एट ऑल आप केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप बाय द वे अगर कैप्स ऑन करके लिखते हो, कैप्स ऑफ करके लिखते हो, कुछ वर्ड्स को कैपिटल कुछ वर्ड्स को स्मॉल लिखते हो, कुछ लेटर्स को, देन ऑल्सो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एरर। Then Apex is tightly integrated. That means Apex is tightly integrated in the sense it actually supports all kinds of your DML operation. Using Apex, you can perform all this operation in insert, update, delete, undelete, merge, upsert, everything. Apex is again tightly, integrated with SQL queries. Using Apex, we could write down SOQL queries, जिसको हम बोलते हैं. Then SOSL, Salesforce Object Query Language, Salesforce Object Search Language. These two are the, query language we are going to eventually learn later in the later coming lectures actually. So then Apex को यूज करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन मेनली क्या होता है कि जब हम सेल्सफोर्स को कनेक्ट करते हैं किसी और थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी सिस्टम मतलब एक एग्जांपल, जैसे मैं 2-3 बार ये एग्जांपल लिया हूँ कि इफ देयर इज अ सिस्टम फॉर एग्जांपल, जैसे कि वो वेदर मैप है, वेदर मैप अगर कोई एप्लीकेशन है, वेदर मैप। So if this is one of the website which if you enter some of the details over here, it actually gives the weather conditions of that particular city, something like that. If you enter like Nagpur, so if you enter Nagpur, see what happens. It will actually give me the weather conditions related to Nagpur. In Nagpur ki kya hai weather conditions. So this is one of the website. Now for example, if you are building any such application, आप Salesforce में क्या application design कर रहे हो, traveling वाला, मतलब using that application, somebody could travel, somebody could plan their travel itineraries. So if someone is trying to go to Bombay on this particular date and he's actually getting some information from your website, so when he enters कि हाँ I wanted to go Bombay to from this particular date to this particular date, so what you can do is like कि आप वो dates और वो particular जो location है, जो city है, that you could give to this website, and on the return this website should could return you कि ठीक है उसका weather condition क्या रहने वाला है, आज कैसा रहने वाला, आज रात कैसा, कल कैसा रहने वाला है, something like that. This is just an example. So when you are transferring some of the parameters to a third party website, and on response to that parameter, third party is giving you some response, and you wanted to display this thing onto the Salesforce application. Now this interchange, this exchange of this kind of exchange of information between Salesforce to third party and third party to Salesforce, this is something called as integration. So this is something called as integration. So using Apex, we could also do that. Using Apex, we have a different kind of API support. Actually, the Apex supports 2 different kinds of APIs, REST and SOAP. Okay. When we do the integration, we will understand what exactly is the REST, representational state transfer, and what does it means by SOAP, Simple Object Access Protocol. तो ये सब क्या चीजें ना, ये सब हम देखने वाले हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि what you can do with the Apex. What you can do with the Apex. Any Apex program should always end with the semicolon, जैसा C में होता है, जैसा C++ में होता है, जैसा Java में होता है, जैसा .NET में होता है, even HTML में भी अगर आप लिखते हो तो भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है. So this is a very common thing. I mean, those who have written a program, जिन्होंने नहीं लिखा है तो भी जान लो कि every Apex statement should always end with a semicolon. ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखो, आप जब क्लास लिखोगे तो जस्ट हैव दिस, एक बार इसको देख लो कि कुछ एक्सटेंशन है, मतलब क्लास का एक्सटेंशन होता है .apxc.
APX stands for Apex, C stands for class. Triggers होता है APXT, again APX stands for Apex and T stands for trigger. Visual Force पे जब आप लिखोगे तो उसको .vfp का एक्सटेंशन मिलता है. VF is Visual Force, P मतलब पेज होता है, ठीक है. ऑब्जेक्ट के लिए .obg वगैरह. तो these are some of the common extensions. तो अगर आप ये देख लो, एक ही बार देखना पड़ता है आपको और फिर ये बात दिमाग में आ जाती है, ठीक है. सो दिस इज अ सिंपल थिंग. तो अपेक्स बेसिकली क्या है? अपेक्स एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने प्रिंसिपल्स होते हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे अपेक्स फॉलो करती है. इसके अलावा अपेक्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप जितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूल है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन है, वो सारे इंप्लीमेंट कर सकते हो. अपेक्स कौन से अपेक्स कम से अंडर था प्रोग्रामेटिक कस्टमाइजेशन. ये ऑफ कोर्स ये सही बात है. कल हमने देखा कि जो कुछ हमने आज तक पढ़ा था जिसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं थी, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव कस्टमाइजेशन. अब जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कस्टमाइजेशन भी बोलते हैं या प्रोग्रामेटिक कस्टमाइजेशन भी बोलते हैं, कि जहां पर कोई लॉजिक आप इंप्लीमेंट करते हो बाय राइटिंग सम ऑफ द कोड्स. तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोग्रामेटिक कस्टमाइजेशन. Apex is not a case sensitive language. तो आप अपर केस लोअर केस का कॉम्बिनेशन करके भी लिख सकते हो Apex में, ठीक है. और उसके आगे जब भी जाओगे आप, इसके आगे जब आप लाइटनिंग पे जाओगे, आप ऑरा पढ़ोगे, आप LWC पढ़ोगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ वो लैंग्वेज केस सेंसिटिव है. Apex एक्चुअली नहीं है. Apex, ठीक है. Apex जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करती है आपकी क्वेरीज को और DML को, दोनों क्वेरीज में, चाहे आप SOQL लिख रहे हो चाहे आप SOSL लिख रहे हो, Apex उसको सपोर्ट करता है. Apex जो है सपोर्ट करता है आपके सारे DML ऑपरेशंस को. तो इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए अगर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हो, सारी अपेक्स सपोर्ट करता है. देन अपेक्स सपोर्ट करता है इंटीग्रेशंस को, कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ में, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ में सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को टाई अप करना चाहते हो, तो दैट आल्सो कैन बी डू विद द अपेक्स. तो ये बेसिकली इस तरह से काम करता है. और एक आखिरी चीज की, अपेक्स ऑलवेज सेंड्स विद द सेमीकोलन. इफ यू डोंट राइट इट, यू आर गोइंग टू गेट द एरर्स वगैरह वगैरह, ठीक है. चलिए, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द डेटा टाइप्स. डेटा टाइप मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया था. कहाँ पढ़ाया था मैं बताता हूँ. व्हेन वी वेर अबाउट टू, फर्स्ट थिंग व्हाट वी क्रिएटेड वन एप्लीकेशन. हमने क्या किया, जब हम एडमिन में थे तो आपको याद होगा मैंने सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन क्रिएट करवाना सिखाया, स्काईलाइन और मर्क. उसके बाद में एप्लीकेशन तो आपने क्रिएट कर दिए. उसके बाद फिर मैंने आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखाया, जैसे हायरिंग मैनेजर पोजीशन एंड द कैंडिडेट. नाउ इफ यू गो टू द पोजीशन, उसके बाद फिर हमने बोला कि देखिए अब आप ऑब्जेक्ट में आए हैं तो आपको फील्ड्स क्रिएट करनी पड़ेगी. वैसे बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट में 5 स्टैंडर्ड फील्ड होती हैं, आईडी, नेम, ओनर, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय. लेकिन उससे काम थोड़ी ना होता है, यू मस्ट हैव सम अदर फील्ड्स. तो फिर एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था हमारे पास में, आईडीडी करके, यहाँ शायद नहीं है अभी. तो उसके उस डॉक्यूमेंट को यूज करके हमने फील्ड्स क्रिएशन करना सीखा. लेकिन जब हम फील्ड्स क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि देखिए फील्ड क्रिएट करने से पहले एक टॉपिक पढ़ना है आपको, यू नो, एंड दैट वाज एक्चुअली डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स ये वाला, फील्ड क्रिएशन से पहले. तो आपने देखा अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं. टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, ऐसे 19 अलग अलग डेटा टाइप्स पढ़ा आपने. फोन, यूआरएल, नंबर, पर्सन्स, चेक बॉक्सेस, ठीक है, ये सब चीजें. अब देखो एक चीज, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, कि वी हैव लर्न दिस, यू नो, हमने ये पढ़ा, हमने पढ़ा डेटा टाइप, राइट. हमने क्या पढ़ा? डेटा टाइप पढ़ा. यहाँ पे इसके पहले जो पढ़ा हमने, आपने इसके पहले डेटा टाइप पढ़ लिया है. डेटा टाइप जिसमें ये सारी चीजें पढ़ी आपने, दैट ऑल 19 डेटा टाइप्स जो आपने पढ़ा, ये सब कुछ, दिस ऑल 19 डेटा टाइप्स जो हमने देखा, जियो लोकेशन, टेक्स्ट एन्क्रिप्टेड, ऑटो नंबर, एवरीथिंग. आई मीन whatever is available, you know, whatever is available onto over here. If I try to create a new field, you know, if I try to create a new field, these all are the data types. These all are the data types. Auto number, formula, roll up summary, whatever, relationship, या फिर आपका चेक बॉक्सेस, यानी ये सारे डेटा टाइप्स थे जो आपने पढ़े, राइट. अभी फिर से आपको डेटा टाइप पढ़ने हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा इसमें. अलग क्या रहेगा? अब समझिए, जितना आपने पढ़ा ना, दैट वाज टॉप ऑफ द लेवल, वो ऊपर के लेवल पे था, ठीक है, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती. अब हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं. वी आर एक्चुअली डाइविंग इनसाइड दिस, वी आर एक्चुअली डाइविंग इनसाइड द कंसेप्ट्स. इसके पहले जो देखा आपने वो यूजर लेवल था. इफ दिस इज यूजर, यू नो, इफ दिस इज यूजर, इफ दिस इज यूजर, तो यूजर के सबसे क्लोजेस्ट जो था, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है. यूजर को क्या चाहिए कि सब रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म में दिखना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड हो जानी चाहिए, है ना. एवरीथिंग मस्ट बी, जिसको हम बोलते हैं ना यूजर फ्रेंडली, ये जो वर्ड है यूजर फ्रेंडली, कि आप इसको और यूजर फ्रेंडली बनाओ, आप इसको और सिंप्लीफाई करो. तो ये जितनी भी चीजें आपने यहाँ देखी ना, ये दीज आल्सो रिप्रेजेंट डेटा टाइप एट अपर लेवल. एट अपर लेवल कौन सा लेवल? विच इज नियर मोस्ट टू द यूजर. नाउ अब हम जा रहे हैं, इफ दिस इज यूजर,
if this is user, we are actually entering towards metadata. System नहीं बोलूंगा मैं, system तो आप नहीं पहुंच पाओ, कभी नहीं पहुंच पाओगे, but we are getting ourselves close to metadata. Salesforce का जो metadata है, data about data, उसके क्लोज जा रहे हैं, वहां पर भी आपको डेटा टाइप्स पढ़ने हैं, वहां पर भी आपको डेटा टाइप्स पढ़ने हैं, बट दीज आर मोर क्लोज टू whom? These are more close to metadata. यूजर से थोड़ा सा दूर है लेकिन मेटा डेटा के क्लोज है. Because why? Because now you are going to start with the programmings. You are now going to start with the programmings. And programming is something which actually deals with metadata. Data about data. ठीक है? तो ये चीज है. तो डेटा टाइप आपने इसके पहले पढ़ा है, ऐसा नहीं है. एंड आई एम गोइंग टू रिलेट एवरी डेटा टाइप. अभी आपको पता चलेगा ऑटो नंबर का एक्चुअल डेटा टाइप क्या होता है. ठीक है? जैसे आपने यहाँ देखा, 1 सेकेंड, जैसे आपने यहाँ पे डेट देखा है, तो डेट ऊपर के लेवल पे, चेकबॉक्स ऊपर के लेवल पे, करेंसी ऊपर के लेवल पे. इंटरनली अगर मैं किसी फील्ड का डेटा टाइप डेट रखता हूँ, ईमेल रखता हूँ, जियो लोकेशन, नंबर, परसेंटेज रखता हूँ, तो उसका एक्चुअल टाइप क्या बनता है, इंटरनली क्या बनता है, मेटा डेटा में वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, वो हम देखने वाले हैं. यूजर के लिए वो चेकबॉक्स है, यूजर के लिए ईमेल फील्ड है. मतलब if someone is entering something over here, यहाँ पे अगर कोई एंटर कर रहा है इस तरह से, तो ये यूजर को दिख रहा है कि ये ईमेल फील्ड है, लेकिन मेटा डेटा पे ये किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है वो हम देखने वाले. तो देखो, आप धीरे धीरे समझो कि आप अभी कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो. इसके पहले भी आपने डेटा टाइप्स देखे हैं, बट दैट वाज मोर क्लोज टू यूजर पर्सपेक्टिव, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी. नाउ वी आर एक्चुअली एंटरिंग टुवर्ड्स मेटा डेटा. अब अभी और हम डेटा टाइप पढ़ने वाले, बट दीज आर समथिंग व्हिच इज मोर क्लोजर टू मेटा डेटा. दीज आर समथिंग व्हिच इज मोर क्लोजर टू सिस्टम. ऐसा है. तो आइए देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कांसेप्ट इज ऑल अबाउट. सो तो डेटा टाइप्स वहां तो 19 दिखे थे आपको, यहाँ 2 ही है. इंटरनली देयर इज ओनली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, प्रिमिटिव, S object. There are 2 different types of data types in Salesforce, primitive and S object. S object, Salesforce object, and primitive. What comes under primitive? Let's first discuss that. What comes under primitive, and then what comes under S object? Let's have a discussion on that. So primitive mainly consists of basic data type, the fundamental data types. The basic data type and the fundamental, every fundamental data type comes under this particular hood of primitive data type. Like your integer, double, long, decimal, boolean, date, time, ये सब. C programming में probably ये सब पढ़ते हैं हम लोग, integer, float, characters. ठीक है? तो यहाँ पर भी है, बट देखो अभी तक इसका नाम भी नहीं लिया था हमने. क्यों? Because we were more close to user. तो we were dealing something which is actually user friendly concepts को हम पढ़ रहे थे. Now we are entering towards, we are going apart from the user, and now we are entering, we are getting more closer to the metadata. That is why we are dealing with some of the integrated part of programming. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके सारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स आते हैं, जिसमें है इंटीजर, डबल, लॉन्ग, ये सब चीजें. एक एक करके समझो. आज ये टॉपिक खत्म करेंगे हम. इंटीजर है ना, ये याद रखे तो ठीक, नहीं रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे सी प्रोग्रामिंग में आपको वो रेंजेस याद करनी पड़ती है ना. 2 to the power 16 मतलब 32,600, 32,000, something like that. It's 3 to I even have forgot that. 65,536 को 2 से डिवाइड करना पड़ता है. 65536 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 32767 आता है. प्लस 32767 से माइनस 32768 इंटीजर की रेंज होती थी वहां पे. तो यहाँ पर भी है, यहाँ बहुत बड़ी रेंज है एक्चुअली. 2 to the power 31 है, बहुत बड़ी रेंज है. तो वहाँ 2 to the power 16 या 2 to the power 31 है, तो डबल का है फर्क. लेकिन ये सब याद नहीं करना है. इफ यू वांटेड टू नो, यू कैन नो इट. सी प्रोग्रामिंग पे इंटीजर के लिए 2 बाइट्स रिजर्व होती थी या 4 बाइट रिजर्व होती है. Anyways, if you know this, that's a good thing. If you don't know this, it won't hurt you anyhow. It will not going to create a problem. ठीक है. We just require to understand the data type. That's it. ठीक है. तो एक होता है इंटीजर. इंटीजर is used to represent the whole number. इंटीजर is used to represent whole number. होल नंबर यानी वो नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता है, पॉइंट नहीं होता है. जैसे 10, 2500 सारे होल नंबर से देखो. दीज आर नॉट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. आपको पता होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है. मतलब 10 लिखना अलग होता है और 10.6 लिखूंगा वो अलग होता है. दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. इसको डेसिमल बोलते हैं. ठीक है. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज होल नंबर, एक पूरा नंबर. ठीक है. तो एवरी सच नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, this particular data type integer allows us to store any numerical values. But what kind of numerical value? That doesn't have any decimal point, because if it have a decimal point, it cannot be stored with this data type. तो अगर आपको पाई की वैल्यू स्टोर करना है 3.144 जो भी है,
3.44 आई थिंक, तो वो आप इसमें नहीं स्टोर कर सकते, उसके लिए दूसरा डेटा टाइप है। कौन सा है वो आगे देखने वाले हैं आप। तो इंटीजर इज सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, इंटीजर इज सच काइंड ऑफ थिंग। अब ये एक हो गई बात। अब ये नोट बड़ा काम का नोट है। तो आपने इसके पहले जब भी नंबर फील्ड, परसेंट फील्ड, करेंसी फील्ड पड़ी है, कहां पड़ी है, दैट सपोज द इंटीजर डेटा टाइप। तो यहां पर देखिए, हम यहां पे हमने हियर वी हैव सीन करेंसी, नंबर, ठीक है, करेंसी, नंबर या फिर परसेंट वाली फील्ड्स। तो जब भी आप ऐसी कोई फील्ड क्रिएट करते हो, whenever you create a field, whenever you create a field with the data type number, with the data type currency, with the data type percent, करेंसी, परसेंट, करेंसी का ये, तो अगर आप ऐसी कोई भी फील्ड क्रिएट करते हो एडमिन लेवल पे, एडमिन लेवल पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ऐसी कोई फील्ड सिलेक्ट करते हो, क्रिएट करते हो, जिसका डेटा टाइप है करेंसी, जिसका डेटा टाइप है नंबर, जिसका डेटा टाइप है परसेंट, तो वो आपके लिए ऊपर के एडमिन लेवल पे वहां तक वो यही बोलेगा कि इसका डेटा टाइप नंबर, परसेंट है। डेवलपर के लेवल पे, डेवलपर के लेवल पे इन सब का डेटा टाइप नंबर, परसेंट या फिर ये आपका करेंसी, इन सब का डेटा टाइप होता है इंटीजर। इन सब का डेटा टाइप होता है इंटीजर। बिकॉज व्हाट वी आर अगर हम करेंसी बोल रहे हैं तो वी आर मोर क्लोज टू यूजर, we are saying number, we are saying percent, we are more close to user, and when we are saying कि नहीं ये भी integer है, ये भी integer है और ये भी integer है, तो we are actually more close to metadata। ये दो अलग अलग एस्पेक्ट से बात हो रही है। एक एडमिन बात कर रहा है, एक डेवलपर बात कर रहा है। तो एडमिन बोलेगा करेंसी, नंबर, परसेंट, डेवलपर बोलेगा इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। ऐसा है ये फर्क। दिस इज व्हाट द डिफरेंस है ना, ऐसा है। तो व्हेनेवर यू क्रिएट एनी सच फील्ड, नंबर, परसेंटेज, करेंसी वगैरह, तो उसका इंटरनल डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर। The next is Boolean. Boolean is also one of the primitive data type. Boolean is also one of the primitive data type. Integer, Boolean है ना ऐसा। तो Boolean क्या होता है? Boolean can store only two values, true or false. That's it. True या false. Any such field what you created with the checkbox as a data type. Checkbox की दो ही possibility होती है, या तो checked या फिर unchecked. If it is checked, it's true. If it is unchecked, it is false. तो admin level पे आप checkbox बोलते हो उसको, developer level पे आप Boolean value बोलते हो उसको। Every checkbox field internally is implemented with the Boolean data type। ठीक है, ये हो गया मेटा डेटा की बात है। स्ट्रिंग पे आते हैं नेक्स्ट। स्ट्रिंग में इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग एवरी स्पेशल सिंबल, नंबर वंबर सब आ जाते हैं, सब चलता है। द ओनली थिंग इज दैट कि स्ट्रिंग को आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना पड़ता है, तभी वो स्ट्रिंग बनता है। तो आप चाहे उसमें आप कैरेक्टर्स दो, व्हाइट स्पेसेस या बीच में एक स्पेस है वो दो, या फिर आप कोई भी स्पेशल सिंबल दो, आप चाहो तो नंबर भी दे सकते हो, सेल्स मैनेजर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5। एवरीथिंग इज ट्रीटेड, whatever is there inside single quote, whatever is there inside the single inverted comma will be treated as what, string, will be treated as string unless and until it is it is in between this single inverted comma, it will be treated as a string and a string will occupy 1 byte। तो ये जरूरी नहीं आपको याद रखना। I'm telling you this is not actually required। ये सब कोई पूछता नहीं है और जरूरत पड़ती नहीं है। बिकॉज मुझे एक चीज बताओ, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार ऐसा, अरे नथिंग इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एट योर एंड। आपके सिस्टम पे थोड़ी ना कुछ भी स्टोर होने वाला है। इफ यू क्रिएट अ प्रोग्राम, इफ यू क्रिएट अ प्रोग्राम ओवर हियर, एंड यू इफ यू ट्राई टू स्टोर इट, ट्राई टू स्टोर, अभी तो बनाया नहीं मैंने यहाँ पे इसलिए सेव ऐसा दिख रहा है। बट इफ आई क्रिएट अ क्लास फॉर एग्जांपल, I created a class and if I try to store it, ये जब मैं स्टोर करता हूँ इसको फॉर एग्जांपल, this is not going to store into my system। तो मेरे सिस्टम पे स्टोर हो ही नहीं रहा है। तो why at all I am worried about the how many bytes it's actually going to consume। विजुअल फोर्स पेज पे थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है, उसमें कंसेप्ट आएगा अपना जिसमें हम देखेंगे कि जहां पर हम बाइट्स को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जरूरत ही नहीं है आपको। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यार इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पता है तो अच्छी बात है, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप लोग याद करते हो तो, बट देन अगर आपको याद नहीं है तो कुछ नुकसान भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज आप जब बना रहे हो क्लाउड पे बनेगा, क्लाउड पे एग्जीक्यूट होगा, क्लाउड पे ही स्टोर होगा। एंड व्हेन द सेकंड टाइम इफ आई वांटेड टू एक्सेस द सेम थिंग आई विल एक्सेस इट फ्रॉम द क्लाउड इटसेल्फ। तो वो जाके मेटा डेटा रिपोजिटरी पे स्टोर होता है। तो फिर हमको क्या लेना देना है ना, हमको क्या लेना देना है। वैसे भी यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द साइज। अगर आप मुझसे पूछो कि सर ये कितना साइज है, मैं कितना स्टोर कर सकता हूँ, तो शायद आपको याद नहीं है, लेकिन हमने बहुत पहले आपको बता चुके हैं ये। गो टू योर कंपनी प्रोफाइल एंड क्लिक ऑन योर कंपनी इन्फॉर्मेशन।
मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि आपको फाइल स्पेस कितना मिलता है। यू गेट 20 MB फॉर द फाइल स्पेस एंड डेटा 5। तो जितने भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो तुम डेटा स्टोर करते हो ना, हायरिंग मैनेजर पोजीशन कैंडिडेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट, अकाउंट केसेस लीड, वो सारा यहाँ स्टोर होता है। डेटा स्टोरेज आपकी कैपेसिटी 5 MB है। और जितनी भी अभी क्लासेस वगैरह जो तुम बना रहे हो, जो मेटा डेटा रिपोजिटरी में जाने वाली है, ठीक है, उसके उसकी कैपेसिटी 20 MB। तो वैसे भी आप 20 MB के बियॉन्ड जाने ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज व्हाट द कैपेसिटी यू आर गेटिंग विद दिस एडिशन। डेवलपर एडिशन पे आपको इतना ही तो मिलता है। तो वाई टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग जिनके बारे में हमको कुछ ध्यान देना ही नहीं है ना। इसीलिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, पता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप्स याद करना, उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। सो स्ट्रिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप। व्हाट वी आर डिस्कसिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वी केम टू नो दैट इनटू द मेटा डेटा रिपोजिटरी देयर आर ओनली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, प्रिमिटिव एस ऑब्जेक्ट। अभी हम प्रिमिटिव की बात करें, प्रिमिटिव इज योर फंडामेंटल डेटा टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। इतनी सारी चीजें होती हैं। तो उसमें आता है इंटीजर, उसमें आता है बूलियन, उसमें आता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपकी सारी टेक्स्ट फील्ड्स जो भी आपने यहाँ पे देखी, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, उसके बाद आपकी पिक लिस्ट, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, उसके बाद आपके यूआरएल, जियो लोकेशन, फोन, ईमेल, ऑटो नंबर, ये सारी डेटा टाइप्स जो आपने यहाँ पर देखी थी, जो आपने यहाँ पर देखी थी, डेट टाइम, ईमेल, जियो लोकेशन, पिक लिस्ट, फोन, पिक लिस्ट, मल्टी सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, ये टाइम, यूआरएल, ये सब दिस ऑल आर व्हाट, यहाँ पे ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। एट द डेवलपमेंट लेवल, एट द डेवलपर, एट द मेटा डेटा लेवल, ऑल ऑफ दिस थिंग आर व्हाट, दे आर स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो whenever you store any text, it will be converted into string, text area long, कुछ भी, whatever you store, the value of the pick list and multi select pick list, everything is a string data type. Whenever you store any URL, geolocation, phone, email, auto number, everything is a string data type. Now if you ask me, sir, phone तो नंबर होता है, स्ट्रिंग में क्यों है? फोन तो नंबर होता है सर, स्ट्रिंग में क्यों है? फोन को तो आइडियली इंटीजर में होना चाहिए, क्योंकि ये एक नंबर है। भाई हर नंबर फील्ड जब यहाँ पे है, तो फोन, आप फोन को कैसे कह रहे हो कि फोन एक स्ट्रिंग है? तो मैं आपसे कहूंगा, देखिए फोन आपने सिर्फ आप नंबर देखो, यू आर सीइंग लाइक दिस 989, है ना, यू आर सीइंग इट लाइक दिस। पर आपको ये भी तो देखा होगा इंटरनेशनली, वेन एवर इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो अब आप बताओ ये हाइफन कैसे स्टोर करोगे? हाउ विल यू गोइंग टू स्टोर दिस हाइफन? ये हाइफन आप कैसे स्टोर करोगे? हाउ विल यू स्टोर दिस सिंबल प्लस? क्योंकि आपके नंबर तो अलाउ नहीं करेगा इसको, इंटीजर तो अलाउ नहीं करेगा। दैट इज वाई दिस इज द रीजन वाई फोन फील्ड, whatever the value of phone field is stored inside the string data type. तो ये अगर कंफ्यूजन था दिमाग में, अगर किसी के आया भी होगा, तो have अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि फोन नंबर ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं रियल टाइम पे। दैट इज वाई उसका डेटा टाइप भी होता है। उसके बाद होता है आईडी। आईडी एग्जैक्टली क्या है? तो हमको ये पता है कि एवरी रिकॉर्ड हैव इट्स ओन आईडी, बराबर। आईडी इज समथिंग विच इज यूनिक, ये भी हम जानते हैं। तो आईडी जो होती है वो 18 डिजिट होती है। वैसे तो आपने एडमिन लेवल पे देखा था 15 डिजिट थी रिकॉर्ड्स की आईडी, लेकिन डेवलपर लेवल पे हमने शुरुआत में दिखाया था कि एक्चुअली रिकॉर्ड की आईडी 15 डिजिट नहीं होती, 18 डिजिट होती है। तो आईडी में क्या क्या स्टोर होता है? देखिए, आईडी फील्ड में सबसे पहले तो आईडी खुद एक डेटा टाइप है, मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, तो आईडी इज वन ऑफ द डेटा टाइप। ओके, आईडी यहाँ से नहीं, सॉरी, डेटा जब हम कोई रिकॉर्ड ओपन करेंगे तो वहां पे हमको मिल जाएगा। इफ आई ओपन दिस VF प्रोग्रामर रिकॉर्ड, तो ये देखो ये आईडी है। तो आईडी इटसेल्फ इज वन ऑफ द फील्ड, पहला ये, ठीक है। तो आईडी का डेटा टाइप क्या है? आईडी ही है। और कौन कौन सी फील्ड है जिसका डेटा टाइप आईडी होता है? ऑल योर रिलेशनशिप, सारी रिलेशनशिप, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर, एक्सटर्नल, हायरार्किकल, ठीक है। वन टू वन, मेनी टू मेनी नहीं, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। वन टू वन एंड मेनी टू मेनी वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। वन टू वन यू इम्प्लीमेंट इट, वन टू वन इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दो चीजें लगती है, वैलिडेशन रूल एंड रोल अप समरी। और मेनी टू मेनी इंप्लीमेंट करते हैं आप तीसरा ऑब्जेक्ट, जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जंक्शन ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद मास्टर डिटेल रिलेशनशिप से उनको जोड़ देते हैं। दिस इज हाउ यू इंप्लीमेंट। तो वो इनडायरेक्ट वे है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप्स कितनी है? एक तो लुकअप है, एक मास्टर डिटेल है, एक एक्सटर्नल लुकअप है, और दूसरी हायरार्किकल रिलेशनशिप। सारी रिलेशनशिप फील्ड और आईडी, ये सब कुछ जितना भी है, ये जितनी भी फील्ड्स हैं, इन सब का इंटरनल डेटा टाइप जो होता है वो होता है आईडी। उसी तरह डेट टाइम, ठीक है,
ये जो होती हैं दीज आर ऑल्सो आई मीन ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में आती है, ठीक है। तो डेट टाइम वगैरह, तो जितनी भी आपकी ऐसी फील्ड्स है उनका ये डेटा टाइप होता है। लॉन्ग, अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, अगर कोई इंटीजर वैल्यू है विच इज बियॉन्ड दिस रेंज 2 to the power 31 है ना, इज बियॉन्ड दिस रेंज, तो वो कहाँ स्टोर होगा? तो उसके लिए आता है फिर लॉन्ग, उसके लिए आता है लॉन्ग। तो उसकी जो कैपेसिटी है 2 to the power 63 64 वट एवर, उतना बहुत बड़ा नंबर आता है। मैंने इफ आई ट्राई टू सी दिस कैलसी पे, आई डोंट नो कैलसी सपोर्ट करता है क्या इसको, साइंटिफिक कैलकुलेटर है क्या यार, ये पता नहीं। हाँ है। इफ आई ट्राई टू पुट 2 to the power 64, ये इतना बड़ा नंबर आता है, देख लो यार आप, है ना, इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू। हो सकता है कभी ऐसा स्टोर करने की जरूरत पड़े, फॉर एग्जाम्पल आप चाइना की जनसंख्या स्टोर करना चाहते हो, इंडिया की जनसंख्या स्टोर करना चाहते हो, द पॉपुलेशन, या कोई भी ऐसी जरूरत जहाँ पे आपको बड़ी वैल्यू स्टोर करनी, तो इंटीजर उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए फिर लॉन्ग वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। देन अगर हमको अब हम आते हैं, ये तो हो गया होल नंबर के लिए, इंटीजर और लॉन्ग, ये दोनों होल नंबर के लिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको आई विल पुट इट ओवर हियर, यहाँ से हटा देता हूँ उसको, यहाँ लेके आता हूँ, तो वो ज्यादा सिग्निफाई करेगा यहाँ पे। तो अगर छोटा नंबर है, होल नंबर है, छोटा नंबर है, तो इंटीजर लेंगे हम। होल नंबर है और बड़ा नंबर है, तो हम लॉन्ग लेंगे डेटा टाइप। छोटा नंबर है, डेसिमल पॉइंट के साथ है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो डेसिमल लेंगे डेटा टाइप। बड़ा नंबर है, मतलब डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और बड़ा नंबर है, तो डबल लेंगे। तो बस यही दो है डेटा टाइप, एक तो या तो आप इंटीजर लेंगे या लॉन्ग लेंगे, या तो आप डेसिमल लेंगे या फिर आप डबल लेंगे। तो वो डिपेंड्स आप कितने नंबर, अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले रहे हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, अगर आप होल नंबर ले रहे हैं तो आपके पास इंटीजर और लॉन्ग, ये दो ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा है ये। उसके बाद आता है ब्लॉब। ब्लॉब स्टैंड्स फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, इसकी जरूरत कहां पड़ती है? आपको याद होगा हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको याद होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे हमने कुछ इमेजेस स्टोर करी थी, जैसे ये स्काईलाइन हेडर इमेज, ये वाली, इसको हमने यहाँ पे और आपको बताया था मैंने कि एवरी स्टैटिक रिसोर्स, स्टैटिक रिसोर्स मतलब क्या, सारी एक्सटर्नल फाइल्स, आपकी इमेज फाइल, आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी, उसके बाद आपके ऑडियो वीडियो, इस तरह की जो भी फाइल्स होती है, इफ यू वांटेड टू यूज एनी काइंड ऑफ स्टैटिक रिसोर्स इन द सेल्सफोर्स, यू नीड टू अपलोड इट वेयर, टू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में आपको अपलोड करना पड़ता है। तो जब हमने ये फाइल अपलोड करी है यहाँ पे, दिस फाइल इज एक्चुअली इंटरनली कन्वर्टेड इनटू वन बाइनरी फाइल। ये हमको तो फाइल के तौर पे दिख रहा है, इमेज के तौर पे दिख रहा है, बट दिस इज इंटरनली stored with the binary values. So this actually get converted into a binary file. So if we wanted to refer any such kind of file, there must be a data type to represent this whole thing. तो ऐसे जितने भी static resources आप अपलोड करोगे, they will be internally get converted into binary. And the kind of data type जो रहेगा उसको blob बोलते हैं, binary large object. तो it allows us to store the binary content, जैसे कि कोई image, कोई document या फिर कोई attachment, कोई फाइल जैसे कि ऑडियो वीडियो, ये सब चीजें। तो दिस इज वन ऑफ द डेटा टाइप जो कि डील करता है वो सारी अटैचमेंट्स के साथ जो कि आप अपलोड करते हो, जो कि आप बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, या कंटेंट एक और ऑब्जेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, एक आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर भी आप चीजें अपलोड करते हो, एक और ऑब्जेक्ट है सेल्सफोर्स में कंटेंट नाम का, ठीक है। तो कंटेंट ऑब्जेक्ट में भी हम जो है इस तरह की स्टैटिक रिसोर्सेस अपलोड करते हैं। तो वहां पर भी जब भी आप, जैसे अब ये फाइल क्रिएट हुई स्काईलाइन हेडर नाम से, यहाँ तो हमको रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ, दिस इज समथिंग विच इज मोर क्लोज टू यूजर। यूजर को अगर बाइनरी रिप्रेजेंट करवा देंगे ना, तो वो समझेगा मैं मैट्रिक्स में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको उस फॉर्म में दिखाना पड़ता है कि जिस फॉर्म में उसको समझ में आता है, बट इंटरनली दिस इज समथिंग विच इज अ बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल कैसे स्टोर करोगे आप, क्या डेटा टाइप है? तो उसका डेटा टाइप है ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आती हैं आपकी ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद आती हैं ऑब्जेक्ट्स। Salesforce का कोई भी ऑब्जेक्ट, दिस इज अ जेनेरिक डेटा टाइप दैट अलाउज टू स्टोर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड Salesforce ऑब्जेक्ट? ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये हम समझेंगे थोड़ा आगे चल के, थोड़ा आगे चल के, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज अ जेनेरिक टाइप, ठीक है। और ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होता है,
तो अभी तो दिखाई दे रहा है कि एस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। इस स्टेज पे आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और एस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये फर्क क्या है आपको समझ में एक्चुअली क्या होता है। एक पॉइंट बस मैं अभी बताऊंगा। व्हेन यू नो व्हेन यू नो कि डेटा किस ऑब्जेक्ट का है, तब ऑब्जेक्ट। व्हेन यू डोंट नो कि डेटा कौन से ऑब्जेक्ट का है, तब ऐसा ऑब्जेक्ट। नहीं समझा? फिर से समझाता हूं। एक रिकॉर्ड आया मेरे पास में, एक रिकॉर्ड आया मेरे पास में। कहां से आया? इंटीग्रेशन से। एक वेबसाइट है, एक्सटर्नल वेबसाइट, जिसने एक फाइल भेजी है, जिसने एक रिकॉर्ड भेजा है। एक वेबसाइट है, एक्सटर्नल वेबसाइट है, एक्यूवेदर। इसने कुछ डेटा भेजा है, इसने कुछ डेटा भेजा है, और मैं जानता हूं कि वो कौन से ऑब्जेक्ट में जाने वाला है। सेल्सफोर्स में ये जो डेटा मैंने रिसीव किया है, एंड इफ आई नो, मुझे अगर ये पता है, दिस इज सेल्सफोर्स, दिस इज थर्ड पार्टी। ठीक है, जस्ट एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। सेल्सफोर्स कुड सेंड सम डेटा टू दिस। सेल्सफोर्स ने, ये मेरा सेल्सफोर्स है, दिस इज थर्ड पार्टी वेबसाइट, टीपीडब्ल्यू। ठीक है, सेल्सफोर्स ने कुछ पैरामीटर सेंड किए। नाउ इन रिस्पांस टू दैट पैरामीटर, दिस टीपीडब्ल्यू हैज सेंड सम ऑफ द थिंग्स टू सेल्सफोर्स। अगर अब सेल्सफोर्स में आने के बाद में ना, सेल्सफोर्स में आने के बाद में, इफ आई नो कि मुझे पता है कि ये डेटा कौन से ऑब्जेक्ट में डालना है, कौन से कंटेनर में डालना है। ठीक है, अगर मुझे पता है कि इफ डेटा, दिस डेटा बिलोंग, देयर इज अ ऑब्जेक्ट, एक कस्टम ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, वेदर कंडीशंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, वाई कस्टम ऑब्जेक्ट है, वेदर कंडीशंस अंडरस्कोर सी। मैंने एक सेल्सफोर्स में कस्टम ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसका नाम है वेदर कंडीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। एंड आई नो कि ये जो पैरामीटर सारे यहाँ डालने, इसी ऑब्जेक्ट में डालने, तो डेटा टाइप रहेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे पता है डेटा को कहाँ डालना, ऑब्जेक्ट। तब आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब आता है ऑब्जेक्ट। बट व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट, चलो अब वही चीज रिपीट करता हूँ। ठीक है, इफ आई डोंट नो, मुझे इनिशियली नहीं पता, इसने कुछ पैरामीटर्स भेजे, इसने कुछ पैरामीटर्स भेजे जिसमें बहुत सारी चीजें, इसने बहुत बड़ा बंच भेजा है मुझे, इतना बड़ा पैरामीटर भेजा है, इतना बड़ा पैरामीटर भेजा है। उसमें से कुछ चीजें अकाउंट में जाएंगी, कुछ कॉन्टैक्ट में जाएंगी, कुछ चीजें अकाउंट में जाएंगी, कुछ चीजें कॉन्टैक्ट में जाएंगी, एग्जाम्पल है, और कुछ चीजें वेदर कंडीशंस में जाएंगी, डब्ल्यूसी में। फिलहाल ये पूरा बंच ऑफ डेटा रिसीव किया आपने, बंच ऑफ डेटा। उसके बाद में सेग्रीगेशंस लगाओगे। ठीक है, उसके बाद में आप डेटा को सेग्रीगेट करोगे, डेटा को बाइफरगेट करोगे, और देखोगे कि ये वैल्यू, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू अकाउंट ऑब्जेक्ट, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, कैंपेन और वॉट एवर केस ऑब्जेक्ट, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू दिस ऑब्जेक्ट। फिलहाल दिस इज समथिंग विच इज रॉ डेटा। अब ये डेटा भेज रहा है, रॉ डेटा में अकाउंट में नहीं ले सकता, बिकॉज द पूरी की पूरी वैल्यू अकाउंट की थोड़ी ना है, इट हैव सम वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट आल्सो। ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं डब्ल्यूसी में नहीं ले सकता, बिकॉज इट हैव सम वैल्यू फॉर अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। तो मैं कहाँ लूं ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, ये मैं कहाँ लूं? तो सेल्सफोर्स के पास में कुछ तो होना चाहिए ऐसा, जिसमें मैं इनिशियली सारी चीजें लाके रखूं और बाद में देखते बैठ, समथिंग लाइक अ वेयर हाउस, कि यहाँ से अगर ये सारी चीजें मिली है तो पहले अपने वेयर हाउस पे रखो, पहले लाओ, देखो, रखो, बाद में देखेंगे क्या करना है इस डेटा का। तो वो कौन है, कहाँ है, जहां पे मैं किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, वो क्या है? दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर एस ऑब्जेक्ट। एस ऑब्जेक्ट एक ऐसा कॉमन कंटेनर है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। और इसका टिपिकली यूज होता है इंटीग्रेशन में, जब हमें ये नहीं, या तो जब हमें ये नहीं पता होता कि डेटा क्या आने वाला है, या फिर हमें ये पता होता है कि जो डेटा आने वाला है इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ डिफरेंट 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 ऑब्जेक्ट्स, जो बाद में हमको सेग्रीगेट करनी है, जिसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे आगे चल के। तो इनिशियली उसको कहाँ मैं कैप्चर करूँ? कहीं तो लाके रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो, अगर मुझे इस डेटा के ऊपर प्रोग्राम चलाना है तो ये डेटा मेरे को सेल्सफोर्स के अंदर चाहिए। समझो, ये डेटा आ रहा है थर्ड पार्टी से। ठीक है, ये डेटा अगर इसमें मुझे प्रोग्राम्स चलाने हैं, ठीक है, मैंने कुछ एपीआईज लिख रखे हैं रेस्ट पे, वो प्रोग्राम चलाने हैं ताकि हम पता कर पाए कि भैया डेटा जो है वो कहाँ कहाँ भेजना है, किस डेटा का क्या काम है। तो उसके लिए डेटा मुझे सेल्सफोर्स के अंदर कहीं तो भी चाहिए, तभी मैं पता कर पाऊंगा कि क्या करना। तो वो डेटा टाइप जो एक कॉमन कंटेनर है सारी चीजों का, ठीक है, वो कहलाता है एस ऑब्जेक्ट। वो कहलाता है एस ऑब्जेक्ट। तो एस ऑब्जेक्ट हम टिपिकली तब यूज करते हैं जब पहली बात, या तो हमें पता नहीं हो कि एग्जैक्ट डेटा टाइप क्या है, या फिर हमें कॉमन कंटेनर की जरूरत होती है जिसमें हर तरह का डेटा डाला जा चुके।
हर तरह का डेटा डाल सकें, that we could store the values of account object, contact object, any of the object. We should have a common container where we could store the values of every object. That, I mean, that is the time also we use this data type as object. तो ये फर्क है थोड़ा सा. तो ये एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको. डोंट वरी, इफ यू गेट द कंसेप्ट दैट्स अ रियली गुड थिंग. इफ यू डोंट गेट द कंसेप्ट, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एस ऑब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट. तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, ऐसा ही है. So don't worry, we are going to have a discussion. Okay. So today we are stopping here, and tomorrow I'll be starting from variable declaration. कैसे करते हैं? From here we will नहीं, यहाँ नहीं, अभी और ऑपरेटर्स होगा, उसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे. ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. यस, चलो.